I started my career with Symmetry Digital. पता है हमारे ग्रुप में दोनों लोग हैं. और मैं थोड़ी नॉटी भी होती थी. सही है. आप तहा भाई की बैचमेट तो नहीं? The packaging is very nice and I was like, shelf आपको किस तरह मिलेगी, you know? जो team board meeting हुई तो उसमें my boss called me and he asked me for like to learn a lot of stuff. I really hope some people are inspired by me. Assalamu alaikum everyone. This is Sohaib Hassan, co-founder BMLH, and we are back again with another amazing episode of BMLH Studio, the Marketeers podcast. Today we are honored to have our amazing guest with us, an esteemed guest with us. Her name is Saman Kazmi, and she is currently serving as head of brands for Dole Foods. Saman, welcome to BMLH Studio. Assalamu alaikum Sohaib, how are you? Walaikum salam, I'm good. आप कैसी हैं? ठीक ठाक. Zabardast. Saman, people would like to know a bit more about yourself, your journey as a marketer. So if you can just skim us through. Yes. So I basically graduated from CBM, right? And I started my career with Symmetry Digital, which is an आप तहा भाई की बैचमेट तो नहीं? ad agency. बिल्कुल. तहा भाई की बैचमेट थी? जी. तो फिर इतना सक्सेसफुल कैरियर कैसे रहा आपका? I think because इनके फादर जो है वो टीच भी करते थे, you know, तो मैं स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ. आपको पता है तहा भाई के द ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे? नहीं? No idea. Mr. Mateen Ahmed Khan, Dr. Mateen Ahmed Khan, who was founding director, dean and director of IBA. Oh, जबरदस्त. इसी वजह से इतना शायद कर लेते हैं वरना. But I think I had a great time when his father taught me financial accounting and all. So and he was mashallah से very humorous teacher. जबरदस्त. तो बड़ा enjoy. और मैं थोड़ी naughty भी होती थी. तो उनके साथ ना मेरा इसी तरीके से रहता था. चलिए जबरदस्त. But nice. जी. Good. So अभी currently I'm working for basically Dpak Private Limited. That's the name of the company. We're basically a distribution company distributing Dole Foods, which is an American brand for canned fruits, frozen canned fruits, and also launching Lacnor juices. So बिल्कुल आप लोगों को फ्रोजन फ्रूट्स मिलेंगे जरूर. चले जबरदस्त. तो first of all, thank you so much, Saman, for taking time out and coming here at BMLH Studio. So मैं आपसे पूछना चाहूँगा, as a person and as a professional, what do you prefer, challenge or humor? I think a bit of both. Okay. Because challenge is something that I look forward to. Even when I was a student, my mother used to tell me कि parents teacher meeting होती थी. Your teachers would say that she would fail in an easy exam and would pass in a difficult test, right? So I think from the very start, I like to take, challenges more because that was something that would challenge my wit as well. And also with a bit of humor in it, because बिल्कुल serious और still तो नहीं हो सकती life, even अगर आप corporate में भी काम कर रहे हैं. Can you think of any challenge or a humor story in your professional life जिसका बाद में आपने जाके सोचा हो यार ये क्या सीन हो गया था, and then you later on realize कि यार या तो वो challenge इतना अच्छा था जिसने आपकी बाद में learning करवाई हो, या वरना वो humor एक कोई ऐसे effect बन जाता है ना कि यार बाद में जाके सोचता है इंसान यार उस वक्त हमें कितना मुश्किल काम लग रहा था लेकिन ये तो कोई गेम ही नहीं था. So basically humor मुझे नहीं पता turn हुआ नहीं, but challenge बहुत बड़ा था. When I was working for Aster International and I was basically working there as a brand manager for Revlon cosmetics and hair care, right? तो हम फ्लेक्स शैम्पू जो है उसको हम क्या कहते हैं रीलॉन्च कर रहे थे. ठीक है. फ्लेक्स शैम्पू आपने देखा होगा जो प्लेन उसकी ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है, बहुत पुराना शैम्पू है, राइट? सो उसकी टीजी जो थी वो ज़्यादातर 50+ थी. तो हम चाह रहे थे फॉर समथिंग 20+ कैन ऑल्सो यूज इट. तो हमने उसकी पूरी रीपैकेजिंग विद इंडियन टीम. सो इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके पास रेवलॉन की फ्रेंचाइज है अदर देन यूएस, right? So we were in touch with the Indian team and सारी हमने पैकेजिंग करवाई. तो उसकी जब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही थी तो मुझे याद है माय बॉस क्या कहते हैं, आई एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, बट उन्होंने इसकी प्राइस
पैंटीन और सनसिल्क से भी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी. तो माई पॉइंट एज अ ब्रांड मैनेजर उस वक्त था कि आई डोंट थिंक सो दिस इज इसकी ऑफ टेक अच्छी होगी, बिकॉज ए फ्लेक्स इज नॉट एन ए कैटेगरी शैम्पू, राइट? इट्स लाइक मिड मास टारगेट ऑडियंस है. तो ही वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि द पैकेजिंग इज वेरी नाइस, एंड आई वाज लाइक कि शेल्फ आपको किस तरह मिलेगी, यू नो, उसके लिए भी आपको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा एंड ऑल, नो मैटर हाउ गुड कॉन्टैक्ट्स यू हैव, राइट, इन द रिटेल. खैर, आई डोंट थिंक सो ही क्या कहते हैं took my opinion and he went with that strategy. And for I think pilot हमने उसका किया था 2-3 months, there was zero offtake, nobody purchased, right? Now after खुद भी नहीं खरीदा हमें तो बहुत में मिलते थे, but after कहने बताने का मतलब ये कि after 2-3 months जब सारी जो टीम बोर्ड मीटिंग हुई तो उसमें my boss called me and he asked me कि why do you think this price did not work? And I told him the reason, right? I was like, I was working on competitor analysis and how it's not easy to convert Pantene या Sunsilk का foreign से Revlon के shampoo पे. तो फिर हमने उसकी ऑफ कोर्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चेंज की, हमने फिर गंडोलास प्लेस किए एंड हमें शेल्फिंग भी मिली. उसके बाद ऑफ कोर्स दैट वाज लाइक अ हिट एंड ऑफ टेक वहाँ से स्टार्ट हो गई. तो फिर वो एंड में मेरे बॉस हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे. सो क्या कहते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि इट टर्न्ड इनटू अ humorous, but it was a challenge. It was a challenge for me. चले जबरदस्त. तो हमने हंसने रोने की बात करी एक साथ. तो मूविंग towards our next question, that is basically a rapid fire round. Okay. So within 1 minute, I'll be asking as many questions as you can, and you need to be as quick as you can. Be prompt and fast. ठीक है. Impromptu. Okay. सही है. तो your time starts now. Your favorite ad campaign so far? I think क्या कहते हैं, यूफोन की ad campaigns मुझे बहुत पसंद है. तो I would say यूफोन. Yes. Your favorite marketing jargon? Favorite marketing jargon. कोई एक word जो आप बहुत ज़्यादा use करती हो marketing से related? बहुत सारे words हैं, but maybe I use cohesive brand approach a lot. So maybe you can say that is. Your favorite marketing book? जो CBM में पढ़ी थी, सीरियसली वही है. उसके बाद मैंने इतनी मार्केटिंग बुक्स पढ़ी नहीं, बट मैंने रिच डैड एंड पुअर डैड पढ़ी है. दैट यू कैन से इज आल्सो क्या कहते हैं मार्केटिंग बुक. दैट इज रियली रियली गुड. रिसेंटली आई फिनिश्ड इट. बिल्कुल सही है. वो कहते हैं कि if your father is poor तो that's not your fault, but if your father-in-law is poor that might be your fault. तो इसलिए rich dad poor dad आप जरूर पढ़ लें before you are getting married. So next, your favorite marketing jingle? फेवरेट मार्केटिंग जिंगल. टाइम खत्म होने वाला है. फेवरेट तो मैं नहीं कहूंगी, मगर आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जो आपके ज़हन में भी आ रहा है. जब से हम आई थिंक छोटे थे तो डेंटोनिक का जो क्या कहते हैं जिंगल था वो बहुत था. तो आई थिंक उसी से आई कुड क्या कहते हैं थोड़ा सा रिलेट विद दैट. अगर डेंटोनिक की टीम सुन रही है तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस. लास्ट टाइम याद भी नहीं है वो कब देखा था हमने आपका मैस्कॉट, लेकिन देयर इज स्टिल रिकॉल ऑफ दैट ब्रांड. मेरे ख्याल में मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर राउंड. Your favorite boss so far in your entire career? रमी सत्तार. सोनराज नहीं, बाकी बिल्कुल नाराज भी होंगे, सब बहुत अच्छे थे, बट रमी सत्तार स्पेसिफिकली जिनके साथ कलेक्टिबल्स में मैंने सोनराज में काम किया था, तो उनके साथ चैलेंजेस भी बहुत थे, पर उनके साथ मज़ा भी बहुत आया था. चलिए ज़बरदस्त. जो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बहुत सारी कैंपेन्स पे समन काम किया. So any campaign that you can think of जहाँ पे आपने behind the scenes बड़े enjoy किए, there were some bloopers या कोई इस type का? So basically when I was working for AK Marketing, ठीक है, and when I was working as a brand manager for Women's Secret and Mango, तो Mango का एक DVC हमें बनाना था. And ज़ारा, मुझे उनका फुल नेम नहीं आ रहा, मॉडल, शी इज़ अ वेरी फेमस मॉडल, लाहौर में होती हैं. उनको हमने शूट के लिए लिया था. एंड उसकी क्या कहते हैं जो पूरी स्टोरी टेलिंग थी, स्क्रिप्ट थी, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स शी इज गोना वेयर एंड एक्सेसरीज, सारा क्या कहते हैं मैंने उस पर काम किया था. और हम लोग लाहौर इस्लामाबाद के बीच में कोई जगह पे गए थे, मुझे उस जगह का नाम याद आ रहा है, जब रिवर था बेसिकली, राइट. तो हमने वहाँ पे शूट की थी. इट वॉज ऑलमोस्ट कोई 15 से 18 घंटे, और वहाँ पे बाथरूम नहीं था, ठीक है, तो ये बात पता नहीं थी. तो वो बड़ा क्या कहते, सॉरी, वो बहुत ही मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने टेंट बना के क्या कहते हैं, वैसे बड़ा सीरियसली सुन रहा था जब तक ये वाली बात आप लेकर नहीं आपने कहा कोई बता. अच्छा आप सुने, हमने ये DVC
क्रिएट कर ली, ठीक है, बना ली, हमने मैंगो की टीम को, प्रिंसिपल ब्रांड को स्पेन में हमने भेजी, दे लव्ड इट। उसके बाद हमने कहा हम इसको चलाएंगे कहाँ, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे चलाएंगे, एक गैलरी हम लॉन्च कर रहे थे वहाँ पे चलाएंगे, हमारी जो रिटेल स्टोर्स है वहाँ पे हम इसको प्ले करेंगे। उन्होंने हमें मना कर दिया, इट्स नॉट अलाउड। तो वो जो थी डीवीसी वो कभी ऑन एयर हो ही नहीं सकी। तो बाथरूम के भी मसले, और मैं आपको बताऊं, Did you ever thought to flush that campaign? आपने क्या सोचा कि अब करना क्या? उसको बस हम देखते रहते थे। अगर मैं आज अगर अभी मेरे पास है नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊं, वो बहुत, इट वाज अ ब्यूटीफुल डीवीसी दैट वी क्रिएटेड, राइट। एंड आज भी अगर मेरे कॉलीग से बात होती है, हम कहते हैं हमारे फोन में ही रह गई है। एक्स एम्प्लॉय डजंट माइंड, तो हम ऑब्वियसली बी रोल्स में चला देंगे इसके, उसमें तो अच्छा सीन हो जाएगा। तो चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस, आई एम श्योर पीपल विल लव इट। आप एज अ मार्केटर, नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स दैट यू हैव वर्क, बट एज अ मार्केटर रिसेंटली कोई भी कैंपेन आपको जो पसंद आई हो, ना पसंद आई हो, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर? आई थिंक मैं मैकडोनल्ड्स और KFC की जो कैंपेन होती हैं उस पर, आई एम अ फूडी, राइट, तो मैं उसको बड़ा क्लोजली क्या कहते हैं ऑब्जर्व करती हूँ। तो अभी बड़ा ऑन चल रहा है इनका। हाँ, अभी मैकडोनल्ड्स की आई थिंक बिलबोर्ड्स हर जगह पे लगे हुए हैं कि समथिंग टू, उनकी आई थिंक टैगलाइन है कि मुंह तो खुला रहेगा, राइट। तो वो कैंपेन जो है, वो द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई डोंट नो व्हाट्स द सब्लिमिनल message that they're trying to give, but did not make any sense to me. So KFC की जो भी पिछली कैंपेन थी, तो मैकडॉनल्ड्स का कमबैक जो था वो was not strong। और आपको पता है हमारे ग्रुप में दोनों लोग हैं, KFC वाले भी हैं और वो वाले भी हैं। नहीं, but at least they should learn ना कि अगर मैं एक एज अ क्या कहते हैं कस्टमर फीडबैक दे रही हूँ, मुझे दोनों ब्रांड्स बड़े पसंद हैं, लेकिन एक तरफ के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे ना आपके लिए, ऐसा है? नहीं, आई थिंक वो सोचेंगे कि अच्छा ये क्यों, हमने इस कैंपेन के पीछे मकसद क्या। आई वुड रियली लाइक टू आस्क, यू नो, अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू जवाब मिल जाए कि मैकडोनल्ड्स का इस कैंपेन के पीछे आइडिया क्या था, व्हाट वाज द स्टोरी टेलिंग, बिल्कुल ठीक, राइट। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग व्हेन यू क्रिएट एनी कैंपेन, हाउ वेल इज योर स्टोरी टेलिंग टेक्निक, तो इनकी क्या थी। सो आई वांट टू नो दैट। नहीं, बिल्कुल ठीक है हिलाल साहब, आप जवाब दें, और जवाब तो देना पड़ेगा बिल्कुल इस तो ये लेकिन नहीं, अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम श्योर हिलाल मस्ट हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन आल्सो, एंड दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। So any feedback is a very good blessing for any of them. Yeah, maybe I'm also missing out on something, so I would definitely love to learn. ये भी हो सकता है कि फीडबैक सुन के मुंह खुला रह जाए या वरना फीडबैक ये जरूर होगा शायद, हो सकता है उनकी, मुझे नहीं पता कितनी सक्सेसफुल कैंपेन रही है, बिल्कुल, बट क्या कहते हैं, जस्ट अ थॉट। या चलें, जबरदस्त। तो अगेन यार, वी आर लिविंग इन ऑब्वियसली 21st सेंचुरी, तो बहुत सारी चीज़ें विद ऑल द टेक स्टफ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। सो एनी ट्रेंड दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, क्या आप फ्यूचर देख रही हैं, क्या चीज़ें आगे मार्केटिंग में हमें कुछ सीखनी चाहिए, हाउ वी कैन अपस्केल आवरसेल्व्स? अच्छा, AI, everybody is talking about AI these days, right? I still, Sohaib, to be honest, it's been 11-12 years that I'm working, right? I think that still AI cannot replace human intelligence, because somebody is also controlling artificial intelligence. So I just think maybe this is a bubble that will burst after some time. But I do believe that from past few years, social media has a very strong voice, right? Whether it's geopolitical, whether you have a brand. And these days, if you see, there are a lot of new local brands that are coming, and they don't have their website, but they have their pages on Insta and Facebook. And wahan se they're like getting a lot of customers. They're also retaining customers. So I think social media marketing is there to stay, but AI maybe I'm not too sure of. I wish instead of me, Taha bhai would have been hosting this, तो बड़ा मज़ेदार सीन होता। मुझे अभी भी देख रहे हैं कैमरे के पीछे, हंस ही रहे हैं वो, लेकिन क्योंकि मेरा और ताहा भाई का अक्सर ये वाला कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, आई एम ऑन योर साइड ऑफ द टेबल। Okay. ताहा भाई जो है वो हमारे डिफरेंट ChatGPT एक्सपर्ट है, तो ही लव्स AI।
maybe he has also a valid point that we can also learn from. बिल्कुल नहीं, what we are planning is कि हम last time भी ये बात कर चुके थे, एक हम AI versus non AI का ना पूरा पैनल डिस्कशन करेंगे. So जो हम जैसे लोग होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे और तहा भाई की टीम एक तरफ हो जाएगी. Let's just do that. बिल्कुल जबरदस्त. So moving on towards our next question. This is basically a segment which we call it a mystery box. वैसे box तो नहीं है, डब्बा हमने already खोल दिया है, but you just need to pick 2 chits out of it. Okay. Yes, इसको पहले कर. Yeah. Okay. Do I need to give it to you? So just open it up. There will be 2 brands. Colgate. Yeah. Pampers. बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन हो गया. Colgate and चले, we Pampers. will give you a chance. आप पैम्पर्स वाला भी साइड पे रखें, एक और चिट उठा लें, वो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा. ये सीरियसली मतलब पैम्पर्स क्यों आपने इसमें रखा है? क्या आ गया अब? लाइफ बॉय. चलो फिर भी certain relevance. So if you were to ever co-brand out of these 2 brands, अगर आपको एक co-branding का मौका मिले, so how will you go about branding Colgate with Lifebuoy? I wish कि मैं आपसे वैसे Pampers और Pampers का हो सकता है because मैंने जब Colgate not with Colgate, maybe with Lifebuoy हम कर सकते हैं. Yeah. Right? Pampers and Lifebuoy की relevance इसलिए है because Lifebuoy यार आप P&G और Unilever को दोनों को co-brand करा देंगे, जबरदस्त सीन हो जाएगा. But देखिए promotional marketing strategy के ऊपर बात कर रहे हैं ना. Pampers is of course for like the TGA's parents. Lifebuoy is also TGA's parents, right? So if a father or mother using Lifebuoy, Pampers is like for their child, for their baby, for the infant. Agreed. So I think relevance तो है. Very valid point. असल में मुझे लगता है ये कि और हम I have attended a lot of seminars and this is something that I have also learned. जितना ज़्यादा आप अपने कंज्यूमर को घोल के पी जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा मेरे ख्याल में you can become a successful marketer. EG से पकड़ना ना, ये that is बहुत important है. हाँ, क्योंकि again क्योंकि अगर buyer same है तो you can always convert, and convert the same buyer. How different the category is, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ relevance निकल ही आएगी. बिल्कुल. और दोनों आप देखें ना पेरेंट्स की ही मेनली कैटेगरी है. तो यू कैन डेफिनेटली टारगेट क्या कहते हैं पेरेंट्स. बिल्कुल ठीक है. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको कुछ इंग्लिश की या तो टैगलाइंस दूंगा या वरना उर्दू की, एंड वाइस वर्सा आपको ट्रांसलेट करना है. अगर इंग्लिश में है तो आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और या वरना वाइस वर्सा. ठीक है. सिंस starting off with 2 of your most favorite brands, finger looking good. Finger looking good. इसका कैसे उर्दू में हो सकता है? आप बताएं ना, आप KFC. ये तो बड़ा अजीब सा हो जाए. वो कुछ होता है ना, कुछ इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो उर्दू में दे साउंड सो बैड. लाइक अगर कोई सॉरी इंग्लिश में कोई गाली उर्दू में बोलते हैं, बोलो प्लीज. ठीक है, इंग्लिश में बेहतर है. तो ये फिंगर लिकिंग जो है वो मतलब सॉरी मैं इसको उर्दू में नहीं बोल सकती. चलें, आई एम लविंग इट बोल सकती. आई एम लविंग इट तो बहुत इजी है. करने ना अब आपने. आई एम लविंग इट वुड बी क्या कहते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है. बिल्कुल सही है. जस्ट डू इट. बस कर दो. बस कर दो. सीधी सादी खुशी है सुपर. सीधी सादी खुशी. सिंपल सिंपल ब्लिस. बाई किया तो तुमने भाई किया. बाई किया तो तुमने भाई किया. भाई किया. इसका क्या मतलब? बाई किया तो तुमने भाई किया मतलब? देयर टैगलाइन इज के बाई किया जो उनकी कंपनी है. हाँ. तो बाई किया, इफ यू आर कॉलिंग बाई किया तो इसका मतलब आपने अपने भाई को बुला लिया. सो अच्छा, दे आर प्लेइंग समवेयर अराउंड ट्रस्ट. कॉलिंग योर ब्रो. कॉलिंग योर ब्रो. सही. खुले खुशियां. jar of happiness. jar of happiness. बिल्कुल ठीक है. जबरदस्त हो गया. So a lot of people are
inspired by you. There are 7,000 plus followers on your LinkedIn profile. I really hope some people are inspired by me. Yeah, mashallah, आपके 7,000-8,000 followers हैं LinkedIn पे. I am sure a lot of them will be aspiring young ladies or girls also. So, what would you advise to them कि उनको अपनी personal branding पे किस तरीके से काम करना चाहिए? I think you have to क्या कहते हैं, stay very focused with whatever you're doing, right? And don't be hasty with your career path. Sometimes I feel in the retrospect, if I have to go back and look, there were a few decisions that I feel at 21, 20 were very hasty for me. Because आप जब अपने early 20s में होते हैं, तो you're not thinking too straight. You really want to do a lot of things, right? तो I think शुरू से अगर आपका थोड़ा सा focused mindset है, उसके लिए आपके parents या आपके क्या कहते हैं peers or क्या कहते हैं your teachers, if they give you the right guidance, then which is very important. Also, don't just say कि मैंने ये सोच लिया है तो मैंने ये करना है. You have to do that. अपने dreams को भी बिल्कुल fulfill करें, but also listen to people around you who have far more wisdom than you, because I believe whatever age you reach, even after 50, 60, the learning curve, it never stops. You keep learning. चाहे आप किसी कंपनी की सीईओ क्यों ना हो, चाहे आप बिजनेसमैन क्यों ना हो, आप या तो अपने यंगस्टर से सीख रहे होते हैं या अपने सीनियर से भी सीख रहे होते हैं, राइट? सो स्टे फोकस्ड एंड बी ओपन टू लिसन टू others around you. Yeah. So any particular tips about क्योंकि inclusivity, diversity का बहुत ज़्यादा concept diversity inclusion पे काम होने लगा है, but if somebody is still feeling left out कि यार नहीं, मुझे लगता है कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा, I'm not getting equal justice, equal opportunity. What are some of the tips that you would like to share with our audience, especially females, if somebody is feeling like that? So how to come out of that frame of mind and change the game? Maybe focus and aim क्या कहते हैं, to what you have. And even if you're looking for a better opportunity, let's suppose working for a local group and now you want to be part of multinational. So even in Pakistan today, it's not easy to, right? So if you land a job, before that you have to prepare for interview, right? So I just believe whether you get in or you don't, because मैंने भी multinationals में interview दिए हैं, ठीक है? Be very transparent and be very honest. And then leave it, you tried your best, right? There are certain things that are out of your control. So even if you're not hired, just feel proud that you had an interview. You landed an interview at a big local group or multinational organization, right? So feel proud and take some learning from the interview. Maybe, क्या कहते हैं कि ये चीज़ I could have done it better, या इसका मैं जवाब बेहतर तरीके से दे सकती. So yeah. So I would also like to ask one more question with you pertaining, क्योंकि अभी आपने डिस्कशन निकाला कि you need to keep yourself motivated. हम एज अ मार्केटर्स, जो एटलीस्ट हमारी वाली जनरेशन है, हम सबकी एक वो पर्सनल प्रेफरेंस ये होती थी कि यार हम FMCG में जाएं, right? तो और FMCG की जितनी भी जॉब्स आती हैं, या तो आप स्टार्ट ऑफ द करियर एज मैनेजमेंट ट्रेनी या बिल्कुल इनिशियल एंट्री लेवल पे स्टार्ट कर लें, बट जितना ज़्यादा टाइम पास होता जाता है उतना इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू एंटर इनटू FMCG. तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर ABM की पोजीशन आती है, सो रिक्रूटर स्पेसिफिकली राइट 2 to 3 years of experience बट FMCG ओनली. तो you are currently working at Dole Foods, which is an FMCG. Which is an FMCG. और इससे पहले आप you joined Dole Foods right at the position of head level, right, as head of brands. So how difficult it was for you to get into that, or once you were there, तो आपको काम में कितना डिफरेंस लगा, and how difficult that FMCG thing was to manage at work, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अक्सर लोगों को चांसेस नहीं मिल पाते. एक्चुअली तो मेरा 6 to 7 years का ब्रेक आया था, बिकॉज मैं पहले जब एस्टर में थी तो रेवलॉन वाज आल्सो एन FMCG, राइट? उसके बाद मैंने रिटेल में
रिटेल साइड पे मैंने काम किया फॉर टेक्सटाइल एंड क्या कहते हैं लग्जरी वॉचेस राइट. तो अब FMCG में दोबारा I hadn't applied for the job, so I'm being very honest with you. There was a recruiter, a known recruiter. She had approached me, and I only took the position because I thought that these are big brands, and I would get a chance to work on these big brands. The only, I would say, bad luck that happened to me was when I joined. Uske ek mahine baad Pakistan government had banned imports. So imports implications. सिचुएशन लीक. तो क्या कहते हैं बड़ा चैलेंज. फर्स्ट 6 months बहुत चैलेंजिंग थे क्योंकि मैंने लेंटा एक बहुत बड़ा जॉइंट सुपर स्टोर है रशिया का. तो मैं उनके साथ भी मैं रशिया भी देख रही थी राइट. हैंडलिंग लेंटा एक्सपोर्ट एज वेल. तो नॉट एट ऑल ईजी. उस वक्त पाकिस्तान के हालात ये थे कि हम पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन पे तो फोकस ही नहीं कर रहे थे. हमारा ये था कि शिपमेंट आ जाए एंड देन ऑफ कोर्स वी विल रन मार्केटिंग एंड सेल्स कैंपेन जो थे. वर्किंग विद रशियंस वेरी चैलेंजिंग बट देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग एज वेल. I'm sure. So yeah. So how has your experience been so far with BMLH? You are one of the very Oldest, first I few think, yeah. members who are there since beginning with us, almost 3.5 years when we initiated this. जी. तो क्या कहना चाहेंगी BMLH के बारे में? I think it's been an incredible क्या कहते हैं experience, and it's still looking for like to learn a lot of stuff because initially when we are also open to feedback. आप McDonald's वाला काम कर सकती हैं. मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ when you guys started, तो उसमें बड़े कम members थे और आज when I'm looking at like group में more than 700, ठीक है, LinkedIn पे you have more than 7,000 people. I think this has to be a incredible success story for all of you. और इस सक्सेस स्टोरी पे मेरे ख्याल से एक आप लोगों को कोई एनिवर्सरी टाइप करना चाहिए BMLH का. हमने अभी रिसेंटली किया था BMLH मार्केटर्स कनेक्ट, जिसमें हमने आपको बुलाने की कोशिश भी करी थी लेकिन आप आई नहीं. आपने मुझे की थी बुलाने की. रिकॉर्ड हो रहा है. तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड जब हमारे 3 years पूरे हो गए थे तो हमने KSPL में पूरा एक BMLH मार्केटर्स कनेक्ट किया था एंड देयर वर 200 members क्योंकि ऑब्वियसली 700 उस वक्त थे भी 500 और दे आर स्प्रेडेड ओवर पाकिस्तान. तो बट इट वाज वन ऑफ इट्स ओन काइंड और इंशाल्लाह इन अर्ली 2024 we are coming up with something big. But thank you so much for the kind feedback and thank you for being part of that journey. It would not have been possible without people like you who have been supporting us unconditionally. क्योंकि मुझे वो टाइम याद है आपने कहा था कि ऑब्वियसली इंसान जॉब उसको या तो अल्लाह ताला या उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ दिलाती हैं. बट मुझे याद है when we were having discussion and you specifically mentioned कि जो जॉब पे आपने अप्लाई किया था तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट जॉब वाज BMLH के थ्रू आपको शायद वहाँ पे किसी ने पोस्ट किया था और वहाँ से आपको वो पता चला था. सो आई एम really glad that you are enjoying to be a part of our community. So thank you so much, Saman, for taking your time out and coming here with us. Thank you to you too. I hope you enjoyed the conversation as well. Zabardast conversation. Zabardast ho gaya. Chale. So thank you so much, viewers, for watching this episode with Saman Kazmi, and we look forward to your feedback also. जो भी आपके comments हो, please हमें ज़रूर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें. Till then, till our next episode, this is Suhaib Hassan signing off.